For an isothermal process, PV is equal to constant. This equation will hold for the isothermal process. For an adiabatic process or an adiabatic change, PV raised for gamma is equal to constant. This equation will be applicable for a adiabatic process. We can represent these two processes on a PV diagram. Here you can see all along the path here, the path A to B is the isothermal path. This is also called the isothermal curve. Here all along the path temperature is constant. Let's say its value is T naught. This is an isothermal process. Along this curve, along this path A to B, the equation PV is equal to constant will be applicable. And all along the curve from B to C, the equation PV raised per gamma is equal to constant will be hold. This is the adiabatic curve, which is representing the adiabatic process. Here you can see clearly the curve BC is much steeper than the curve AB. What is the reason for this steepness? This is due to this gamma factor. For this curve, gamma is equal to 1, whereas for the curve B to C, BC curve, for an adiabatic path, the gamma factor is greater than 1. That's why the adiabatic curve is always steeper than the isothermal curve. For an adiabatic curve, always for a given change in pressure, there is a large change in volume and vice versa. That's mean अगर हम प्रेशर में थोड़ा सा भी कुछ चेंज लेके आते हैं तो एज अ रिजल्टेंट वॉल्यूम में एकदम से बहुत लार्ज चेंज आएगा एंड वाइस वर्सा. इसी तरह से अगर आप प्रेशर में ज़्यादा एकदम से चेंज लेके आते हैं तो उसके क्या होगा, एज अ रिजल्टेंट वॉल्यूम में चेंज बहुत स्मॉल होगा. So we can also write this equation in terms of temperature and volume. Adiabatic process equation, we can also write this equation in terms of temperature and volume. Here this is in the form of pressure and volume. So let's rewrite this equation. PV raised per gram is equal to constant. Simply multiply and divide by B. We know for an ideal gas PV is equal to NKT. So replace this PV with NKT is equal to constant. Now here Nk is constant where T and B are variables. So simply divide both sides of this equation by Nk. So when you divide this constant divided by Nk is already constant. So constant divided by constant, that will give you another constant. So Tv raised to power gamma minus 1 is equal to constant. What does this equation mean? For example, now we have an isotherm in terms of temperature and volume. Let's say here temperature is T1 V1 and at this point temperature is T2 V2. Now this equation will hold for this path, for this curve at these points. Let's say the point A and the point B. So we can apply this equation on these points. Here T1 V1 raised per gamma minus 1 is equal to, at this point, T2 V2 raised per gamma minus 1. So you can find the temperature T2 or T1 if this is unknown. For example, you have here are 4 variables T1, B1, T2 and V2. Let's suppose you have 3 known variables and one of them unknown variables. Let's suppose T2 is a known variable and you have to find the value of T2 temperature. So you can find T2
by simply dividing this side by v2 raised to power gamma minus 1, and you can get the values of t2. Similarly, if you don't know the value of t1, you can find the value of t1 from this equation by using this relation. So now, before discussing the second law of thermodynamics, let's have a look at again the function of state. You know, the function of state is such a quantity which only depends on the initial final value of the macroscopic variables. Function of state is always independent of the path. So we can write an equation of state in the form like this. Here, G is a function of state, a quantity which is a function of state. X and Y are the variables. They may be a macroscopic variables. Here we just represent those variables in the form of coordinates, position coordinates. For example, let's say here G corresponds to temperature. Let's say you can write T function of state in terms of pressure and volume. Similarly, we can write up equation of state for a pressure P in terms of V and T, and similarly for volume in terms of pressure and temperature. So the temperature of a system with fixed number of particles is given by this. This is the equation of state for a temperature of the system where n is fixed. So let's come to this equation again. Any small change in G is given by, for any small change in G, here G is the function of X and Y. So let's take the partial derivative of G. The partial differential of G is equal to partial G over partial X, keeping Y constant, into d of x, plus partial G over partial Y, keeping X constant, into d of y. So such kind of derivatives are called the partial derivatives. Okay? इस नोटेशन का क्या मतलब है, जो बाय हमने एक स्मॉल y लगाया है, इसका मतलब है कि हम अब g को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट. अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपने डिफरेंशिएट नहीं करना, सिर्फ x करना है, y को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है. सिमिलरली हियर इन दिस नोटेशन आप g को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं. सो ओके, नाउ इक्वेशन a कैन बी रिटन एज, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यूँ लिख सकते हैं. लेट्स सपोज कि हम इस क्वांटिटी को कह देते हैं कि ये a है, इसको a से जस्ट इसको शॉर्ट करने के लिए हमने कह दिया कि a है, और ये फंक्शन है किसका, x और y का, क्योंकि g हमारे पास x और y का फंक्शन था, तो हम इसको a x y का फंक्शन d of x प्लस b x y d of y, इस क्वांटिटी को हमने कह दिया कि ये b के इक्वल है. ठीक है, here a is equal to this and b is equal to this. Now take the second derivative of this equation. इसका सेकंड डेरिवेटिव लें. अब सेकंड डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं. अगर तो हम डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव इसका लें फिर तो पार्शियल स्क्वायर डी और पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे हम इसका मिक्स डेरिवेटिव लेंगे. सेकंड डेरिवेटिव लेना बट मिक्स डेरिवेटिव. इसको डिफरेंशिएट करें, डी ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर जी ऑफ पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यानी कि इसका ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था, यानी कि हमारे पास ए था सारा, ए का विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलरेडी था, हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया, प्लस इस इक्वेशन का ऑलरेडी इस साइड का जो था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो इसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा. सो इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखें, थोड़ा ओपन करके लिखें, तो इसको इसी चीज को हम यूँ लिख सकते हैं पार्शियल जी और पार्शियल वाई. इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वाई को हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, कीपिंग वाई कांस्टेंट. एंड सिमिलरली हियर द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ partial g or partial x is with respect to y while keeping x constant. So for continuous functions of state,
ऐसे फंक्शन ऑफ स्टेट जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, फॉर दोज फंक्शन द ऑर्डर ऑफ द मिक्स डेरिवेटिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो मिक्स डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर से मतलब ये है कि चाहे आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले ले लें, बाद में वाई ले लें, या विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले ले लें और बाद में एक्स ले लें, ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है। सो अगर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। चाहे आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेके एक्स लें, या पहले आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है और उसका फिर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बोथ साइड्स जो हैं, बोथ क्वांटिटीज दे विल बी इक्वल। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें। ये चीज हमने किसके इक्वल सपोज की थी, पार्शियल जी और पार्शियल वाई हमारा बी था, तो इसको बी के इक्वल फिर अगेन पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल बी ओवर पार्शियल एक्स एट कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को हमने ए के इक्वल सपोज किया था। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दें अगेन ए से, जस्ट इनको जरा शॉर्ट करने के लिए। पार्शियल ए ओवर पार्शियल वाई एट कांस्टेंट एक्स, so this derivative must be equal to this derivative. Such function of states are called the analytic. ऐसे फंक्शन ऑफ स्टेट्स जो है वो एनालिटिक कहलाते हैं। और ऐसे फंक्शन ऑफ स्टेट का जो डिफरेंशियल होता है वो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ये किसके इक्वल था, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टेट जो था वो जी था, तो जी का फिर जो डिफरेंशियल होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। द डिफरेंशियल ऑफ जी विल बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। किस वक्त एग्जैक्ट होगा, जब ये दोनों फंक्शन जो है वो एनालिटिक होंगे, यानी कि राइट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा, सेम आंसर होगा, तो हमारे पास जो फिर गिवन फंक्शन ऑफ स्टेट जो जी है वो फिर उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, और जी हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टेट होगा। अगर तो ये इसका डिफरेंशियल, अगर ये दोनों एक साइड जो है वो इक्वल नहीं आती, इसका मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फिर जी का जो डिफरेंशियल है वो इन एग्जैक्ट होगा, और जी जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं होगा। सो फंक्शन ऑफ स्टेट होने के लिए जी के लिए फंक्शन ऑफ स्टेट होना, और उसके डिफरेंशियल का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इनको एनालिटिक होना चाहिए। सो नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड we move further. For reversible process, the first law of thermodynamics is simply, this is the first law of thermodynamics. Simply जैसे आप वर्क डन की वैल्यू पुट कर दें माइनस पी डी वी, ठीक है, यहाँ से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल लें, इस टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो सिंपली आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने इसको रीअरेंज किया और वर्क डन की वैल्यू पुट कर दी। Here the line through this d, this derivative is representing the inexact differential. Here this is the inexact differential. क्या मतलब है इसका inexact differential का, कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं देगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो फंक्शन ऑफ स्टेट यील्ड नहीं करते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि हम इसको, इस ये जो डिफरेंशियल है इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाना चाह रहे हैं, ताकि जब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमें फंक्शन ऑफ स्टेट दे। उसके लिए क्या करते हैं, हमें कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, यानी कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना होगा कि जब हम उस फैक्टर को इस इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जब हम इंटीग्रेट करें तो फिर वो हमें कोई फंक्शन ऑफ स्टेट दे। यानी कि उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट बन जाएगा, और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को जब हम इंटीग्रेट करें तो वो हमें फंक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारा आपके पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसमें आपके पास ये डी ऑफ एक्स जो है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कोई इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब इसमें देखिए ए हमारे पास क्या है, इसको जस्ट उस जी वाली फॉर्म से कंपेयर करें। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, अब यहाँ पे फंक्शन जो है ये एक्स किसका फंक्शन है, वाई और जी का। इस साइड पे देखिए हमारे पास टोटल वाई और जी में है ये इक्वेशन, यानी कि एक्स यहाँ पे फंक्शन है किसका, वाई और जी का। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास ए और बी भी वाई और जी में फंक्शन है। तो ए यहाँ पे क्या है,
जो फर्स्ट टर्म है एक कोरिस्पॉन्ड कर रही है ए किसके इक्वल है जी क्यूब के, और जो ये वाला फैक्टर है ये सारी जो टर्म है वो बी के इक्वल है। जिस अब देखें यहाँ पे बी किसका फंक्शन है, जी और वाई का। अब इसको चेक करें, डेरिवेटिव लेके देखें, लेकिन पार्शियल ए का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, जी को कांस्टेंट रखते हुए वो लें। इसी तरह से फिर पार्ट बी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू जी, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें इस इक्वेशन में। तो इसका दोनों का जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर इक्वल नहीं होंगे। जब ये आंसर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो डिफरेंशियल है वो इनएग्जैक्ट है, ये हमें कोई फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं देगा। सो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रही उस प्रोसेस को कि हमने इसे किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड किया है। सिंपली आप जो है मेथड आपकी बुक में से देख सकते हैं, 9 चैप्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। सो इस इक्वेशन को अब आप मल्टीप्लाई करें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, ई रेज टू पावर वाई जी। इसके साथ जब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइड करें, ये आपके साथ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करें ई रेज टू पावर वाई जी के साथ, और इस टर्म को भी ई रेज टू पावर वाई जी के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ए हमारे पास क्या बन गया, अब ये पूरी टर्म जो है जी रेस्ट पर जी क्यूब इंटू ई रेस्ट पर वाई जी, इस सारे के सारी जो टर्म है वो अब ए है, और ये जो सारी टर्म है ये सारी की सारी बी है। ठीक है, अब अगेन इनका डिफरेंशियल है, पार्शियल बी और पार्शियल वाई लें कीपिंग जी कांस्टेंट, एंड पार्शियल ए और पार्शियल जी लें कीपिंग वाई कांस्टेंट। इसका आपके पास इसका so suppose a system with n moles of an ideal monatomic gas and the internal energy for n moles ideal monatomic gas is equal to 3 by 2 nRT. Here nR constant is the temperature, U is the function of temperature. Also for an ideal gas we know that the ideal gas equation is P is equal to nRT. The product of pressure and volume is equal to, is directly dependent on temperature. So for a reversible change, when there is an expansion involved in a system, then the first law of thermodynamics can be written as, here just put the value of this internal energy for an ideal monatomic gas, the derivative of U, d of U, here U is equal to 3 by 2 nRT plus, now from this equation get the value of pressure, simply dividing this V on both sides. So pressure will be equal to nRT over V, just put the value of P from this equation, this is nRT over V. So it's the inexact differential, that means the heat which is reversibly added to the system is equal to this thing. Now divide both sides by temperature, दोनों sides को temperature से divide कर दें, this divided by T, इस साइड को जब आप T से divide करेंगे तो dt over T, इसको जब T से divide करेंगे तो T से T cancel हो जाएगा, nR dV और V। अब दोनों साइड्स को इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट्स के दरमियान में आप इंटीग्रेट कर दें। लेट्स से हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो Ti और फाइनल टेम्परेचर Tf है। इस तरह से जो वॉल्यूम वेरी कर रहा है वो कुछ इनिशियल वॉल्यूम Va से फाइनल वॉल्यूम Vf के तक वेरी कर रहा है। दोनों साइड्स को आप इनिशियल और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स के दरमियान इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रेट करेंगे ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, जस्ट ये इंटीग्रेट होगा। इसी तरह से nr कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ये इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा log ऑफ Tf माइनस log ऑफ Ti। तो इस पे log की प्रॉपर्टी यूज करें, log ऑफ Tf ओवर Ti। इसी तरह से ये टर्म भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ log Vf ओवर Vi। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल था, बेसिकली जो d ऑफ q था इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, t के साथ। जब इसको हमने t के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास अब एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया।
ठीक है, यानी कि ये जो 1/T का फैक्टर है ये बेसिकली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। जो हमने डिवाइड किया इससे टी से डिवाइड कर दें या इसको 1/T से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो जो 1/T का फैक्टर था ये बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। अभी हमने पीछे देखा कि जब हम किसी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फिर हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या करता है, किस चीज को यील्ड करता है, एक फंक्शन ऑफ स्टेट को, एक न्यू फंक्शन ऑफ स्टेट को। नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल which yields a new function of state, जो हमें एक नया फंक्शन ऑफ स्टेट दे रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो न्यू फंक्शन ऑफ स्टेट जो हमें यहाँ से मिलेगा ये कहलाएगा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस के साथ। सो चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाएगी, डी ऑफ एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। ठीक है, अगर अगर इसको हम सिंपली टोटल चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास आ जाएगा एस एफ माइनस एस आई। ये कोई फाइनल वैल्यू है एंट्रोपी की और ये हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू को लेट्स सपोज हम इसको टेबल कर लेते हैं कि हमारे पास जो आइडियल एन मोल्स मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए हमारे पास जो इनिशियल एंट्रोपी की वैल्यू है लेट्स से दैट इज एस नॉट। तो ये हमारे पास नॉन वैल्यू है एंट्रोपी की और हमें फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास है एंट्रोपी चेंज। तो हमने फाइनल लेट से वैल्यू फाइंड करी, इनिशियल हमें मालूम है, तो इस इनिशियल को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास एस आ जाएगा। इसी वैल्यू हमें पुट करें, एस इज इक्वल टू दिस प्लस ये जो हमारे पास एस नॉट था इसको आप इधर ले जाएं, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो हमें नॉन है एस आई, इनिशियल वैल्यू जो लेट से एस नॉट है वो हम इसको दूसरी तरफ ले गए। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का फार्मूला आ जाएगा फॉर एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की एंट्रोपी जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।